देखो मैं Okay. Hello. Now guys, everything's okay now? Hello. Yes. यार. Dear voice is okay? Hello. Yes, Good sir. morning. Yes, sir. Good Okay. morning, sir. Good morning all. Good morning. So. Good morning, sir. Good morning, good sir. guys. So I'm going to share your screen. Okay. And now we are going to start our lesson. So now I will be not able to see your comments. So here is your screens. I'm doing screen sharing. And here it is. Okay. Now guys, all of you will turn off your mic. Guys, you all will turn off your mic. Hello. Hello. सर आवाज नहीं आ रहा है. आवाज नहीं आ रहा है? हेलो? नो सर. आ रहा है सर. आ रहा है. फाइन फाइन. सो डियर स्क्रीन इज क्लियर. स्क्रीन दिख रहा है ना आप लोगों को? Yes, sir. Okay. So let's start the lesson. Yes. Yes. कोई मार्क नहीं. सर सेक्शन ए का सर क्वेश्चन कहाँ है सर? आंसर नहीं भेजे हैं. क्या? Good morning, sir. गुड मॉर्निंग डियर. गुड मॉर्निंग. ये स्क्रीन के साथ छेड़खानी नहीं भाई. जिसने भी किया स्क्रीन के साथ छेड़खानी नहीं. हेलो. हेलो. Yes dear, we can hear you. हेलो. कहाँ थे? क्या करना? Okay, fine. So dear, yes come. I am going to mute all of you. आप सभी को म्यूट करने जा रहा हूँ. And when you want to No, ask sir. something, when you are going to ask something, you will just raise your hand. Emoji is there. Emoji जो भी hand raise का symbol है. अनुष्का माइक ऑन करो पहले आप. I'm not getting you dear. माइक ऑन करो पहले. हाँ ना. हाँ हो गया माइक. ये सास. Sir, sound is not clear. Sound is not मम्मी थोड़ा सा clear. शांत हो जाओ. Sorry. Yes, sir. Okay, I will try my best. Wait, let me Okay, sir. try to solve external. So now voice is okay guys? Voice is okay? Voice is okay dear? Okay, fine. Very good, very good. Good.
So let's start the lesson, dear. I think yes, admit Priyanshu Kumar. Come on. Okay, fine, dear. Let's start. So mute your mic, guys. Yes, fine. So this is a very beautiful lesson and interesting story it is actually. So in this lesson we are going to study. Yes, yes, Anushka, ask. सर डाउट है समरी कैसे लिखते हैं? समरी कैसे लिखते हैं? आप जो नाइट वॉइस का समरी दिए थे चैप्टर 1 का, कैसे लिखेंगे समरी? स्टार्टिंग कैसे होगा? बेटा समरी कैसे लिखेंगे? सो आई विल शो यू. ओके, इन द guys listen, I will explain it later. First of all, let me start the lesson. Okay, in last 5 minutes I will discuss you how you we will write the summary or explanation. Okay, last 5 minutes I will discuss to you. So let's start the lesson. Do you like the stories? What is your favorite kind of story? Detective, humorous, suspense, thriller, romance, means romantic love stories, or horror stories? So means which type of story do you like? So basically it's a horror story but comedy also, horror with comedy. Do you think a story about a graveyard? Dear, what do you mean by graveyard? So you will write graveyard means cemetery. Cemetery. One more meaning will be there, burial ground. Yes. Yes, Anushka, ask. The sound is not clear. Sound is not clear. Yes, sir. Definitely it's going to problem, man. Okay, sir. Sir. Now Yes. clear. Now clear. Okay. Clear. Fine, fine. Yes, burial ground, boneyard, you can say boneyard. You will write all the word meaning. Okay, boneyard. Kirkyard, you will also write kirkyard, K-I-R-K. All of you guys, you will write this meaning. It's all are the synonyms of graveyard. Okay, guys. Now, on a dark, stormy night can be humorous. Means, can you imagine? It's a totally horrorful night, and do you think comedy will be there? Read on to find out. Let's start the lesson. The fact. This story is about Henry Armstrong.
let's see what happened with him. The fact that Henry Armstrong was buried, even though he was buried, but didn't seem to him to prove that he was dead. Generally, what we do after that, either we will put in fire or we will bury that dead body. But in Armstrong case, it was not right. Even though we buried him, but he was alive at that time. Let's see how we did that. He had always been difficult. What was problem with Henry Armstrong? There was a problem, a difficult man to convince means to believe, dear. Means वो assure, you can say assure. Means Henry Armstrong एक ऐसा करेक्टर था बेटा जो अजीब तरह की उसकी प्रॉब्लम थी. प्रॉब्लम कैसे कि उसकी बॉडी मूवमेंट, बॉडी के साथ कुछ प्रॉब्लम थी. और जनरली व्हाट वी डिड कि जब उसकी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं था, हमने उसको दफना दिया. लेकिन उस समय तक वो डेड नहीं था, वो जिंदा था. चलो देखते हैं. बट द फैक्ट दैट ही रियली वाज, यस सोनाली, Sir, your sound is not clear. here just refresh it, sound will be okay. And if any issue there, then I will do recorded video on your e-content. Okay, I will upload it, recorded video on your e-content. So just Okay, sir. listen, try to understand. Okay, I will do that thing, recording also. Fine, good. So but the fact is that he was really upon his, he was buried, लेकिन उसको दफना दिया गया था बेटा. All his senses told him, means उसकी जितनी भी senses थी, सभी senses को observe करने के बाद we found that he was no more, he was dead. But his posture means the way he was sitting, he was sleeping, walking, whatever, flat upon his back. अब देखो जिस तरह से वो लेटा हुआ था, वो जिस तरह से लेटा हुआ था, कैसे लेटा हुआ था? With his hand across upon his stomach. उसके, यस सोनाली, सर आवाज क्लियर नहीं आ रहा. हाँ बेटा वो लाइट डिस्कनेक्ट हुई तो आवाज चली गई थी. इट्स ओके, अब ठीक हो जाएगा. So Okay. can you start with beginning? I'm not understand anything. I will, it will be very impossible, dear. 10 minutes already gone. So if I will start it from very beginning, then it will be very difficult going to. Okay, no issue. I will just explain it. कि हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग को हमने क्या किया था बेटा? हमने हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग को बरीड कर दिया था, अंडरग्राउंड कर दिया था, उसको दफना दिया था. बट इसका मतलब ये नहीं था he was dead, क्योंकि उसके साथ सेंसरी प्रॉब्लम थी. उसकी जो सभी जो सेंस थी, जो हमारी सेंसेज होती हैं देखने की, सुनने की, वट एवर, सो उन सभी को ऑब्जर्व करने के बाद हमें ये लगा कि वो मर गया है. लेकिन एक्चुअली ही वाज नॉट डेड, बट हमने उसको क्या किया था? दफना दिया था. अब उसकी बॉडी पोस्चर कैसी थी, कैसे हमें पता था कि वो मर चुका है? देखो, हिज बॉडी पोस्चर फ्लैट अपॉन हिज बैक, वो बिल्कुल पीठ के बल लेटा हुआ था. विद हिज हैंड अक्रॉस अपॉन हिज स्टोमक, उस अपने दोनों हाथों को ऐसे क्रॉस करके पेट के ऊपर रखा हुआ था. एंड टाइड विद समथिंग दैट ही इजीली ब्रोकन, और उसको ऐसी रस्सी से बांधा गया था. देखो क्या होता है ना कि जब हम किसी की डेड बॉडी को लेके जाते हैं दफनाने के लिए, तो उसको कपड़े में लपेट के फिर उसको रस्सी से बांधते हैं. अगर वो इंसान जिंदा होता तो बिल्कुल पतली रस्सी से उसको तोड़ सकता था, लेकिन वो कोई मूवमेंट उसने दिखाया ही नहीं. इससे ये भी साबित होता कि वो मर चुका था. तो इसका कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से वो लेटा हुआ था, जितनी पतली रस्सी से उसको बांधा हुआ था, ही इजीली ब्रोक, उसको आसानी से तोड़ सकता था. इवन दो इट डिडंट हेल्प हिज सिचुएशन, लेकिन उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं. द स्ट्रिक्ट कन्फाइनमेंट ऑफ हिज एंटायर बॉडी. अब देखो हुआ क्या कि उसको बॉडी को उठाकर कॉफिन में डाला गया. कॉफिन में डाल के तब ना दफनाते हैं बेटा, कॉफिन में डाला गया. द ब्लैक डार्कनेस, जब उसके ऊपर से वो कॉफिन का लीड कवर किया गया, चारों तरफ अंधेरा था, फिर भी उसने कोई मूवमेंट नहीं दिखाया. एंड प्रोफाउंड साइलेंस, प्रोफाउंड मीन्स एक्सट्रीम साइलेंस, made it impossible to disbelieve that he was buried and he accepted it.
एक्सेप्टेड इट, मतलब कि उसको दफनाने की लास्ट तैयारी हो चुकी थी, तभी तक उसके बॉडी में कोई मूवमेंट था ही नहीं, और जब उसको पूरी मतलब कि उसको दफनाने की पूरी तैयारी हो चुकी थी, अभी तक उसने कोई बॉडी मूवमेंट नहीं किया था। तो यहाँ तक क्लियर है बेटा सब कुछ, एवरीथिंग? Yes, sir. Okay guys, good. Now class is going good. Let's see next. but हमने उसको दफना दिया, but dead no, लेकिन क्या हम ये मान लें कि he was dead? No, we were wrong. He was only very ill, मीन्स वो इतना बीमार था कि उसकी बॉडी मूवमेंट हो ही नहीं रही थी, लेकिन हमने क्या सोचा कि वो मर चुका है। Being so sick, he didn't greatly concern himself. वो इतना बीमार था कि उसको यही नहीं पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसको कोई टांग के ले जा रहा है या कोई उसको दफनाने की तैयारी कर रहा है, उसको सेंस काम ही नहीं करती, इतना बीमार था वो। With unusual circumstances, वो इतना बीमार था कि उसको unusual circumstances, जब देखो उसको मारने तक की दफनाने तक की तैयारी होगी, इससे ज्यादा भयंकर सिचुएशन क्या होगी कि किसी को जीते जी दफना देना, लेकिन फिर भी उसके अंदर वो सेंस थी ही नहीं। He found himself, वो हमेशा ऐसी प्रॉब्लम फंसा जिसके बारे में उसको पता ही नहीं था। No philosopher was he, वो कोई फिलोसफर भी नहीं था। अब फिलोसफर क्या होता है डियर? So you will write philosopher is a person who study, philosopher is a person who studies the nature of knowledge, the nature of knowledge. Yes, let me, yes Sonali, you may ask your doubt. No problem, sir. Yes, नो प्रॉब्लम सर। सर बैठ कर मतलब कि सुन रहे हैं तो नहीं हो रहा है, फिर चलना पड़ रहा है, टहलना पड़ रहा है, तब सुनाई दे रहा है। okay. Yes Astha, you may ask your doubt. अनम्यूट करो बेटा। आस्था माइक ऑन। Yes, ask. I'm not getting you. Sir, your voice is not coming. बेटा आपकी आवाज बहुत कम है, बोलो। Sir, your voice is not coming. Okay, it's lagging. No issue, beta. It may be network problem. So just check you. Okay. Okay. Yes. Priyadarshini, you may ask your doubt. सर आप वो फिलोसफेयर का एक बार फिर से बता दीजिएगा ना। Good dear. Philosopher, who is a philosopher? Philosopher is a person who studied the nature of knowledge. बेटा ये ऐसे लोग होते हैं जो इस चीज का अध्ययन करते हैं कि नॉलेज का स्वभाव क्या होता है, मतलब किस किस वे से नॉलेज को गेन कर सकते हैं। Am I right? मैं क्लियर डियर? Yes. Praveen Kumar, you may ask your doubt. सर कन्फाइनमेंट मीन्स? डियर कन्फाइनमेंट होता है किसी को बंदी बना लेना, इम्पोज। लेट मी राइट हियर, इट्स अ कन्फाइनमेंट। ओके, कन्फाइनमेंट मीन्स, लेट मी चेंज, ओके लेट मी चेंज इट। Yeah, it's a confinement means captive, कैप्टिविटी, किसी को बंदी बना देना। अब देखो क्या है कि उसमें उसको बांध के लेके जा रहे हैं। Are you getting me? वो डेड बॉडी को, Yes, sir. Good. Okay. Let's see. So he was not philosopher. He was no philosopher. Just a plain, commonplace person with a disease. वो एक सीधा साधारण आदमी था जो कि बीमारी से ग्रस्त था। The organs that caused his discomfort was quite. अब देखो जो ऑर्गन, जो सेंसरी मोटर उसके डिस्कम्फर्ट, देखो अगर हमें कोई तकलीफ होती है किसी बॉडी पार्ट में तो हमारी जो सेंसरी मोटर है वो हमें मैसेज करती है ब्रेन तक, तो हमें पता चलता है कि ओ यहाँ चोट लगी है। बट उसकी जो सेंसरी मोटर थी उसने वो आउट ऑफ ऑर्डर हो गई थी बेटा, वो उस तक ब्रेन तक दिमाग, मतलब ये कहो कि वो एक हिसाब से कोमा में था। तो
यस, तो वो बिल्कुल क्वाइट, मतलब कि बिल्कुल शांत हो चुकी थी, वर्किंग करना बंद कर चुकी थी एट दैट मोमेंट, उस समय तक। सो विद नो पर्टिकुलर फियर, इसीलिए उसको किसी प्रकार का कोई डर था ही नहीं कि उसके साथ क्या हो रहा है। फॉर द इमीडिएट फ्यूचर, कि भविष्य में उसके साथ क्या होने वाला है, उसको इस चीज का एहसास था ही नहीं। He fell asleep, वो बिल्कुल एक गहरी नींद में सोया हुआ था। And all was at peace with Henry Armstrong, और उसको ऐसा लग रहा था जैसे कि वो आराम से सोया हुआ है, बल्कि उसको तो फाइनली लास्ट नींद की तैयारी कर रहे थे लोग, लेकिन उसको क्या लगा कि वो सोया हुआ है ना। तो यहां तक क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, सो नाउ मूविंग अहेड, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नाउ सी, बट समथिंग वॉज गोइंग ऑन ओवरहेड, लेकिन बेटा कुछ न कुछ तो ओवरहेड का मतलब होता है डियर समथिंग दैट इज नॉट क्लियर। नॉट क्लियर, ओवरहेड का मतलब क्या होता है कि जो बाउंस है, जो हमें समझ में ना आए, जो क्लियर ना हो। ओके, अनसर्टेन, यू कैन राइट हियर अनसर्टेन। अनसर्टेन जो अनिश्चित होता है, हमें पता ही नहीं होता। सो बट समथिंग वॉज गोइंग ओवरहेड, इट वाज अ डार्क समर नाइट। अब देखो कहानी यहां से स्टार्ट हो जाती है, उसको दफना दिया गया है, ऐसा कुछ है। ये डार्क समर नाइट है, शॉट थ्रू द सम टाइम विद सिमर ऑफ लाइटनिंग। और देखो डार्क समर नाइट है, आंधी तूफान वाला समय है, कभी कभी रह के क्या होता है, लाइटनिंग सिमर जो होता है ना, ये बिजली चमकती है जब बारिश आने वाली, उससे पहले जो बारिश आने वाली, उससे पहले जो बिजली चमकती है बेटा, तो उसकी बात हो रही है। सर यस यस बेटा, प्रवीण कुछ पूछना चाहते थे आप? नो सर, क्लियर है। ओके फाइन, तो जो बिजली चमकती है उसकी बात हो रही है कि रह रह के सम टाइम, कभी कभी बिजली चमक रही थी, साइलेंटली लाइटिंग अप अ क्लाउड लेइंग लो इन द वेस्ट एंड सिग्नलिंग अ स्टॉर्म। और जब बिजली चमकती है और थोड़ी थोड़ी हवा चलनी शुरू होती है, तो इसका मतलब क्या होता है कि अब ये भयंकर तूफान आने वाला है। दिस ब्रीफ फ्लैशेज ऑफ लाइट्स, और रह रहे कि जो लाइट फ्लैश होती, जो बिजली चमक रही थी, ब्रॉट आउट घास्टली क्लैरिटी। देखो घास्टली क्लैरिटी क्या होता है, डरावना सीन क्रिएट करना, भूत प्रेत वाला सीन क्रिएट। अगर आपने हॉरर मूवी देखा हो तो खंडर दिखाया जाता है, बिजली चमक रही होती है, हवा चल रही होती है ना, वो सब सीन क्रिएट करती है। ओके, द मोन्यूमेंट्स एंड द हेडस्टोन ऑफ द सिमेट्री, मतलब कि देखो जस्ट इमेजिन यू आर ऑन अ ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान में के बीचों बीच खड़े हो, बिजली चमक रही है, और जो मार्बल स्टोन है उसे बिजली की लाइट पड़ी तो वो और ज्यादा ब्राइटनेस करता है, तो इससे और हॉरिबल फीलिंग आती है, डरावना सीन क्रिएट होता है। तो इसी की बात हो रही है। एंड सीम टू सेट देम डांसिंग, और ऐसा लगता था जैसे कि बिजली चमकने से ऐसा लगता था जैसे कि वो डांस कर रहे हैं। कभी बैक में बिजली चमक रही तो उधर की फ्लैश हो रही है, कभी राइट में, ऐसा कुछ, ऐसा जैसे वो डांसिंग कर रहे होते हैं। इट वॉज नॉट अ नाइट, ये एक ऐसी नाइट नहीं थी बेटा, इन विच एनी विटनेस हुज वर्ड कुड बी डिपेंडेड ऑन वाज लाइकली टू बी मूविंग अबाउट अ सिमेट्री, सो द थ्री मैन हु वर देयर डिगिंग। अब देखो इसका कहने का मतलब क्या है कि ये कोई साधारण रात नहीं थी, ऐसी रात में कोई घर से बाहर नहीं निकलता, बट यहाँ पे तीन कैरेक्टर ऐसे हैं जो बाहर निकलते हैं और कुछ ऐसा काम करते जो कि बिलीव करने लायक नहीं है। ये ऐसी रात नहीं थी, एनी विटनेस हुज वर्ड, ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी आवाज हमें सुनाई दे, कुड बी डिपेंडेड ऑन द लाइकली टू बी मूविंग अबाउट द सिमेट्री, कि किसी की हिम्मत नहीं थी कि ऐसी डरावनी रात में वो कब्रिस्तान की तरफ कोई जाए। सो द थ्री मैन हु वर देयर, लेकिन तीन आदमी वहां पहुंचते हैं, वो क्या करते हैं, डिगिंग इनटू द ग्रेव ऑफ हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग, वो तीन आदमी मिलके क्या करते हैं, हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग की कब्र को बाहर निकालते हैं, बाहर निकालते हैं। फेल्ट रीजनेबली सिक्योर, उनको क्या लगता है कि अब ऐसी डरावनी रात में हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई बाहर से देखने वाला नहीं होगा, सब डर के घर के अंदर होंगे, तो अब किसी भी डेड बॉडी को बाहर निकाल सकते हैं। अब ये तीन आदमी कौन थे बेटा, ये आगे क्लियर होगा। यहाँ तक क्लियर है डियर? यस सर, क्लियर है। गुड, हैंड अप कर दो एक बार, हैंड ओवर। अरे वाह लड़के, अनुष्का चौधरी, चलो अच्छी बात है बेटा। लेट्स सी, गुड सृष्टि से, लेट्स गो नाउ सी, एक पैराग्राफ और करेंगे बेटा। ओके, टू ऑफ देम, अब देखो तीन जो लोग थे उसमें टू ऑफ देम वर स्टूडेंट,
स्टूडेंट थे, हमने पहले बोला था कि ये मेडिकल स्टूडेंट है, और एक और आदमी है जैस करके नाम होगा उसका, वो वहां का केयर टेकर है ग्रेवयार्ड का। फ्रॉम द मेडिकल कॉलेज अ फ्यू माइल अवे, जो कि थोड़ी दूर पे था। द थर्ड वाज अ जिजांटिक मैन, जिजांटिक होता डियर वेरी बिग, बिग और वेरी बिग, मतलब एक कुछ ऐसे इंसान होते हैं बेटा जिनको देखते ही डर लगता है। इट्स जस्ट एंटर्ड द वेटिंग रूम। बेटा ये अपने क्लास के हैं क्या? इट्स जस्ट अभी कोई पता जानता है इनको? हाँ ठीक है, ठीक, ओके चलो। सो एक बड़ा आदमी था नोन एज जैस, जिसका नाम क्या था? जैस। ये अंडरलाइन कर लोगे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फॉर मैनी इयर्स जैस हैड बीन एम्प्लॉयड एट द सिमेट्री, ड्यूटी दी गई थी वहां पे एज अ मैन ऑफ ऑल वर्क, वो वहां पूरी जिम्मेवारी से अपना काम करता था। एंड इट वाज हिज फेवरेट प्लीजेंट्री, ये उसकी बहुत, दिव्यांशु कुमार, और ये उसकी बहुत फेवरेट प्लेस थी। ही न्यू एवरी सोल इन द प्लेस, क्योंकि काफी समय से वहां काम कर रहा था, तो उसको पता था किस जगह में किसकी आत्मा, मीन्स कि कौन कहाँ लेटा हुआ है, किसकी डेड बॉडी कहाँ दफन की गई है, उसको अच्छी तरह से पता था। किसको? जैस। गुड। आउटसाइड द वॉल, अब देखो सिमेट्री की बाउंड्री थी, उसके बाहर क्या था? एट द पार्ट ऑफ द ग्राउंड फारदेस्ट फ्रॉम द पब्लिक रोड, पब्लिक रोड से बाहर दीवार की तरफ वॉज अ हॉर्स, वहां पे एक घोड़ा था, एंड अ लाइट वैगन वेटिंग, एक घोड़ा गाड़ी थी जिसपे कि कुछ ले जाने वाले थे ये लोग। क्या ले जाने वाले थे ये लोग? डेड बॉडी को लेके जाने वाले थे, क्योंकि ये मेडिकल स्टूडेंट, इनको एक्सपेरिमेंट के लिए डेड बॉडी चाहिए थी। तो ये दोनों, अब समझ में आ रहा है ना स्टोरी क्या है? तो हो सकता है पोस्टमार्टम या कुछ चेक करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए डेड बॉडी चाहिए थी, तो इन्होंने कॉन्टेक्ट किया होगा किससे? इन्होंने कॉन्टेक्ट किया होगा जैस से, और जैस ने कहा कि ठीक है, किसको पता है, एक अभी डेड बॉडी आई है, उसको खोद के दे देंगे। तो यहाँ तक स्टोरी क्लियर है बेटा? यस सर, इट्स क्लियर। ओके डियर। सो आगे का जो स्टोरी है डियर, वो हम, यस सृष्टि से वांट टू आस्क समथिंग, यस आस्क डियर। यस सर, क्लियर है। ओके गुड गुड गुड। तो सो डियर, जब अगर ये इसका मतलब होता है क्या, यू वांट टू आस्क समथिंग, और इसका मतलब है ये सर क्लियर। ओके, इसको ध्यान। ओके सर। हाँ, तो डियर अब हम बात करते हैं कि वो जो आपने स्टोरी, जो प्रीवियस हमने पोएम किया था, उसकी समरी कैसे करनी है। तो बेटा अनुष्का आप लाइव हो जाओ, कैमरा ऑन करो। तो डियर अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो नाइट वॉइसेस थी उसकी पोएम, वो पोएम के बारे में। तो एक मिनट रुक जाओ, मैं थोड़ा सा स्क्रीन वो कहाँ है, क्लास 8 नाइट वॉइसेस। So dear, can you see the screen, night voices? Dear, यस सर। ये नाइट वॉइस वाला स्क्रीन शेयर है ना आपके साथ? यस सर। ओके, तो बेटा आप इसका कैसे करोगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ विल यू राइट? अनुष्का, अनुष्का हियर, अनुष्का चौधरी। आई थिंक ओके, नो इशू। अगर उन तक आवाज आ रही तो यू विल जस्ट चेक इट। सो यू विल स्टार्ट, यस हियर अनुष्का, गुड, यस बेटा, नाउ आस्क। स्क्रीन शेयर नहीं है। स्क्रीन शेयर नहीं है, ओके। नाउ इट्स ओके या? अभी भी नहीं है सर है, शेयर है। ये सर है, मिल ओके गया, गुड मिल गया। गुड गुड गुड। तो देखो डियर, हाउ यू स्टार्ट? सो बेसिकली यू विल स्टार्ट 1 or 2 लाइन अबाउट द नरेटर और पोएम। बेसिकली यही है, एक डेढ़ लाइन जो भी है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कैसे है, स्कॉटिश है, ऐसा कुछ है, तो इनके बारे में 1-2 लाइन लिख देना। और उसके बाद क्या करोगे कि दिस पोएम इज रिटन
very systematically. Okay, and through this poem, the poet want to reveal the feeling of a child. The poet has very beautifully used all the literary device in this poem. Like कौन सी literary device यूज की है उसको थोड़ा बहुत जिक्र कर दोगे. In this poem, the poet reveals that the child's emotions, child's feeling, and he was asking many questions as the child is scared. इस टाइप से बेटा आपने जो कुछ भी इस पोएम में पढ़ा है, क्या क्या क्वेश्चन, which type of question does he ask, है ना, तो ये सब आप उसमें थोड़ा बहुत मेंशन करके राइमिंग स्कीम यू विल मेंशन राइमिंग स्कीम. मतलब कि समरी का मतलब ये है बेटा कि आपको लिटरेरी डिवोर्स क्या क्या यूज की गई है, किस टाइप की पोइम है, और एक दो इसका मेन मैसेज किया जाता है. बच्चे की फीलिंग को रिवील किया गया कि छोटा बच्चा होता है वो डरता है अंधेरे से, है ना, तो ये सब चीजें इसमें लिखनी है. कैन यू डू दैट? Yeah, okay dear, okay, fine. So the class is over, you can join your class. Okay guys? Okay, sir. Okay dear, best of luck. Thank you, sir. Thank you. Okay dear. Now you may quit. सर Yes. सर डिस्कस का 3 नंबर थोड़ा बताइए ना. Discuss इसी लेसन का था पोइम का. Yes. What expression does the father give the sound? ये यस सर. आप बताओगे ना बेटा कि देखो यहाँ पे क्या था, 3-4 वॉइस की बात हुई थी, विस्परिंग की बात हुई थी, तो फादर क्या बोला था कि बेटा ये हवा की आवाज है, द एयर इज ब्लोइंग थ्रू द ट्रीज दैट क्रिएट्स द साउंड. ओके, और सेकंड क्या था, मरमरिंग की जो बात हुई थी, तो फादर ने क्या कहा था, इट्स द साउंड ऑफ सी, समुद्र के लहरों की आवाज है. ओके, तो ये यस सर. 2-3 बातें आपको लिखनी है उसमें. कैन यू कर सकते हो ना बेटा? यस सर. ओके, ठीक है. ओके सर, बाय. बाय डियर, बाय.